एक्सपायरीના દિવસે બજારમાં મામૂલી તેજી સાથે બજાર બંધ થતા દેખાયા છે. તેમ છતાં નિફ્ટી સેન્સેક્સની રેકોર્ડ ક્લોઝિંગ જોવા મળી છે. બેંક નિફ્ટી પણ નવા શિખર પર બંધ થયો છે. બજારના કારોબારની વિગત લઈએ સહયોગી નીરજ કંસારા પાસેથી. નીરજ, બજારમાં આજે ક્યાંથી કન્સોલિડેશન જોવા મળ્યું? જી, તો આજના દિવસે બજારમાં આપણને ઓવરઓલ એક તેજી સાથેનું ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું છે. જો આજે સવારે જ્યારે શરૂઆત થઈ ત્યારે નિફ્ટી અને સેન્સેક્સ આપણને થોડા લાલ નિશાનમાં કારોબાર કરતા જોવા મળ્યા હતા, પરંતુ દિવસના અંતે થોડી રિકવરી આવી છે અને આજે લગભગ 5% જેટલું નિફ્ટી અને 5%થી થોડું ઓછું વધીને સેન્સેક્સ આપણને બંધ થતું જોવા મળ્યું છે. પરંતુ ખાસ વાત જુઓ નિફ્ટી બેંકની ઉપર, નિફ્ટી બેંકમાં આજે સારી એવી એક તેજી સાથે આપણને 51,783ના રેકોર્ડ લેવલ પર આપણને ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું છે. ગઈકાલે આપણે 51,900 ઉપરના એક હાઈ તો બનાવ્યા હતા, પરંતુ ક્લોઝિંગ ત્યાંથી ખાસું એવું નીચે આવ્યું હતું. અને ખાસ કરીને મિડકેપમાં જો આજે ફરી એક વખત લગભગ 500 પોઈન્ટથી વધુની તેજી આવી છે, એટલે 1% જેટલો ઇન્ડેક્સ આજે આપણને વધતો દેખાયો છે. આજના દિવસમાં તમે વાત કરશો તો રિયલ્ટી સેક્ટરમાં એક સારી એવી તેજી જોવા મળી. મેટલમાં આજે એક પોઝિટિવિટી આવતી જોવા મળી. પ્રાઇવેટ બેંક આજે ખૂબ જ સારું કામ કરતા આપણને દેખાયા છે, પરંતુ જ્યાંથી ઘટાડો આવ્યો એમાં જુઓ ફાર્મા, ઓટો, PSU બેંક, CPSE આ બધા એવા કાઉન્ટર રહ્યા કે જ્યાં આજે આપણને થોડુંક ઘટાડો આવતો જોવા મળ્યો છે. નિફ્ટીના ફ્રન્ટ પરથી વાત કરી લઈએ તો આજે હિન્ડાલ્કોની અંદર એક સારી એવી તેજી જોવા મળી. ગ્રાસિમ, BPCL, અદાણી પોર્ટ, JSW સ્ટીલ આ બધા સ્ટોક એવા રહ્યા કે જ્યાં આપણને એક સારી એવી તેજી આજના દિવસે આવતી જોવા મળી છે. પરંતુ ખાસ કરીને ઘટાડાની વાત કરીએ તો ઓટો સેક્ટરમાંથી હીરો મોટો કોર્પ લગભગ 2.5% ઘટતો દેખાયો છે. M&Mની અંદર એક ઘટાડો છે. સન ફાર્માના દાદરી યુનિટમાં US FDA દ્વારા વોર્નિંગ લેટર આપવામાં આવ્યો છે, એટલે 2%નો ઘટાડો આજે ત્યાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત NTPC, વિપ્રો, HDFC લાઈફ જેવા કાઉન્ટર પર રહ્યા કે જ્યાં આજે આપણને થોડોક ઘટાડો જોવા મળ્યો. પરંતુ ખાસ કરીને મિડકેપમાં ફ્રન્ટ પરથી જુઓ તો આજે ફરી એક વખત ફર્ટિલાઇઝર સેક્ટર આપણને એક સારી એવી તેજી દર્શાવતું થયું અને ફેક્ટનું કાઉન્ટર લગભગ 20% જેટલું વધીને બંધ થયું છે. આ ઉપરાંત પ્રેસ્ટીજની અંદર પણ 7.5%ની તેજી આવી છે. ભારત ફોર્જ લગભગ 5%ની તેજી સાથે બંધ થયો છે અને દીપક નાઇટ્રાઇટમાં પણ 4.5%ની તેજી આજે આપણને વિટનસ થઈ. પરંતુ આ ઉપરાંત તમે જોશો તો ખાસ કરીને જે ઘટનારા કાઉન્ટર્સ છે એની અંદર જુઓ BSC લિમિટેડ, વોડાફોન આઈડિયા, ટાટા ટેકનોલોજીસ અને ઓઇલ આ બધાનો સમાવેશ થાય છે કે જ્યાં ઘડી આજે આપણને ઘટાડા તરફી કારોબાર જોવા મળ્યો છે. ઓવરઓલ આજની એક્સપાયરી આપણને પોઝિટિવ ઝોન પર જોવા મળી છે અને નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે હમણાં થોડા સમય માટે આપણને બજાર એક સુસ્ત કારોબાર કરતું જ દેખાઈ શકે છે, કારણ કે અત્યારે કોઈ બહુ મોટા ટ્રિગર આપણને તેજીના દેખાઈ નથી રહ્યા. જી નીરજ, આ માર્કેટની સમગ્ર અપડેટ આપવા બદલ આપનો આભાર. ત્યારે જ બજેટને લઈને બેઠકોનો સિલસિલો હવે વેગ પકડવા લાગ્યો છે. થોડા સમય પહેલા નાણામંત્રીએ કેપિટલ માર્કેટ અને ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરના અગ્રણીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી અને હવે ઉદ્યોગ જગતના અગ્રણીઓ સાથે નાણામંત્રીની બેઠક થશે. સંપૂર્ણ સમાચાર પર વિગત લઈએ સંવાદદાતા लक्ष्मण रॉय पासेથી. लक्ष्मण जी, फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में क्या निकला है? देखिए, कैपिटल मार्केट की तरफ से दो तरह की मांगे हैं। पहली बात तो ये कि जो भी आप टैक्स की दरें रखते हैं, सबसे बड़ी बात तो सब टैक्स पे फोकस रहता है, क्योंकि बजट का मुद्दा रहता है कि जो भी आप बदलाव करें तो उसमें एक स्थिरता दिखे, कंटिन्यूटी दिखे। ये नहीं कि आप कुछ साल बाद कुछ टैक्स लगा रहे हैं, कुछ रेट बदल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक तरह से आम सहमति ये बनी कि स्थिरता आपको टैक्स की दरों में होनी चाहिए। दूसरी बात कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एक मुद्दा है जो हर बजट से पहले उठता है। इंडस्ट्री अपने अपने सुझाव देती है और सरकार भी इस पर काफ़ी सक्रियता से विचार करती है, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर सरकार के भीतर ही दो मत है कि अलग अलग स्लैब है, अलग अलग सेगमेंट पे अलग अलग टैक्स की दरें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। दुनिया भर में इसमें काफ़ी एक समानता रहती है, तो वो एकरूपता लाई जाए। वित्त मंत्रालय कई बार बजट से पहले इस पर स्टडी कराता है और रुक जाता अंतिम फैसला लेने से इन वक्त पहले। तो इस बार फिर से मुद्दा उठा है और मुझे लगता है कि जब बजट पेश किया जाएगा तो वित्त मंत्री जब बजट के दूसरे हिस्से को जो पढ़ने लगते हैं, जब हम लोग काफ़ी सतर्क हो जाते हैं सुनने के लिए, तो उस हिस्से में शायद इसकी छाप देके आपको देखना चाहिए। तीसरा एक मुद्दा, इस बार एक नया मुद्दा जोड़ रहा है, वो है FNO सेगमेंट को लेकर के, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को लेकर के। ये नया मुद्दा इसलिए जोड़ रहा है क्योंकि इस मुद्दे पर वित्त मंत्री ने चिंता जताई थी पिछले दिनों और कहा था कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो इसमें काफ़ी ज़्यादा रुझान उनका बढ़ता जा रहा है, तो उनकी जोखिम को आप
आप किस तरीके से सुरक्षित रख रहे हैं, उनको कम से कम जोखिम हो ये कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं, उनके हितों की देख रेख कैसे की जाए, इस पर उन्होंने चिंता जताई थी। तो इसके दो ऑप्शन है, एक तो वित्त मंत्री कुछ ऐसे उपाय कर दें बजट में ही ताकि ये चिंता दूर हो जाए, या फिर वित्त मंत्री सेबी के साथ बातचीत करके उपाय निकाले। तो सेबी वाले बातचीत तो अलग होगी, लेकिन बजट में ये भी देखने वाला होगा क्या इस सेगमेंट में कोई छेड़छाड़ सरकार करती है कि नहीं करती है। तो ये आपको फाइनेंशियल मार्केट को लेकर के रहा, और इसमें कैपिटल मार्केट को लेकर रहा। फाइनेंशियल मार्केट को लेकर भी मोटे तौर पर यह है कि जो भी चीज़ें फाइनेंशियल मार्केट की बैंकिंग सेक्टर की हैं वो सिर्फ बैंकों के प्रॉफिट तक ना रहे, एक सोशल वेलफेयर में जो बैंकों की भागीदारी होती है, फाइनेंशियल सेगमेंट की भागीदारी होती है, उसको और कैसे सक्रिय बनाया जाए, फाइनेंशियल मार्केट को और कैसे मजबूत बनाया जाए, रोबस्ट बनाया जाए, इसके ऊपर भी इस बैठक में चर्चा हुई। और ये एक ऐसी बैठक हुई है जिसकी काफ़ी हद तक झलक आपको बजट में देखने को मिलेगी, और हम लोग भी इसका इंतजार कर रहे होते हैं। जी लक्ष्मण जी, तो ये कैपिटल मार्केट की दिक्कत जो ने इनसे बात की है नाणा मंत्री से, ये तो बात हुई, पर लक्ष्मण जी इंडस्ट्री से भी वित्त मंत्री मिलेगी, तो क्या विश लिस्ट है इंडस्ट्री की? जीएसटी बिल्कुल इस बैठक का अहम मुद्दा नहीं है। बहुत छोटे समय के लिए अपनी बात इंडस्ट्री रख सकती है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, राज्यों के वित्त मंत्रियों का सलाह मशवरा होला है। क्योंकि बजट में जीएसटी का कोई लेना देना नहीं होता, जीएसटी को लेकर चर्चा यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे दो मुद्दे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कैसे कंजम्पशन ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए। आप अगर जीडीपी के आंकड़ों को देखें और कंजम्पशन ग्रोथ के आंकड़ों को देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ क्वार्टर से दोनों के आंकड़ों में तालमेल नहीं दिख रहा है। जिस तेजी से जीडीपी ग्रोथ दिख रहा है उस तेजी से कंजम्पशन ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो खपत को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पे सबसे ज़्यादा जोर रहने वाला है इस बैठक में। इसमें एक तरीका यह है कि इनकम टैक्स में राहत दे दी जाए। तो कई सारे इंडस्ट्री दिग्गज की तरफ से सुझाव दिए जा रहे हैं कि इनकम टैक्स में राहत दीजिए, 20 लाख तक की आमदनी वालों को राहत दीजिए, क्योंकि आमदनी वाले लोग ऐसे होते हैं जो पैसे आते हैं तो बचत कम करेंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ से खर्च करेंगे तो खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो पूरी इंडस्ट्री को फायदा होगा। दूसरा ये है कि मनरेगा जैसे स्कीम में पैसा आप ज़्यादा बढ़ा दीजिए, किसानों को हाथ में ज़्यादा पैसा दीजिए। ये तो रही बात खपत बढ़ाने को लेकर के। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है आपको रोजगार बढ़ाने को लेकर के। तो रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो बिल्कुल टेस्टेड स्कीम है, उसमें और ज़्यादा इंडस्ट्री को शामिल किया जाए। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो आपको कि निवेश कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ पे दो मत है। सरकार कह रही है कि निजी निवेश को लाइए, वो उस तरीके से बढ़ नहीं रहा है। निजी कंपनियां कह रही हैं, इंडस्ट्री कह रही है कि सरकार और इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। सरकार का कहना है कि मैं 11 लाख करोड़ पहले कर चुका हूँ, काफ़ी है। इंडस्ट्री चाहती है 11 लाख करोड़ से काम नहीं चलेगा और सिर्फ 15-16% आप 25% करिए अपने पब्लिक कैपेक्स का। सरकार कहती है कि निजी निवेश को आप बढ़ाइए, जितना हो रहा है उससे काम नहीं चलेगा। ये एक मुद्दा है, लेकिन कैसे निजी निवेश बढ़ाया जाए, पब्लिक कैपेक्स कैसे बढ़ाया जाए, निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पूरे बजट से के ऊपर चर्चा को लेकर के। जी लक्ष्मण जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ત્યારે